हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज की इस लेक्चर से हम बात करेंगे इंसिनरेटर। इंसिनरेटर की टॉपिक मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। जो हमारी फर्स्ट लेक्चर्स होगी और जो हमारी आज की लेक्चर्स होगी, इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर मार्पोल एनेक्स रिगार्डिंग द इंसिनरेटर। जो हमारी सेकेंड लेक्चर्स होगी उस पर हम बात करेंगे इंसिनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होती है, स्टार्टिंग स्टॉपिंग प्रोसीजर ऑफ इंसिनरेटर क्या होती है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारी थर्ड टॉपिक होगी वो हमारी कंबाइंड टॉपिक होगी लाइन डायग्राम, दैट इज बिल्ज लाइन डायग्राम ऑन बोर्ड शिप्स, जहां पर मैं आपको इंसिनरेटर एंड ऑयल वाटर सेपरेटर्स बोथ की लाइन डायग्राम में एक साथ आपको दिखाऊंगा। वहां की वाल्व अरेंजमेंट, पंपिंग अरेंजमेंट, मैं सारी चीजें उसमें शो करूंगा। तो आज की जो हमारी लेक्चर्स होगी वो हमारी रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंसिनरेटर एंड मैं कुछ पार्ट्स आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि जो हमारी सेकंड लेक्चर्स होगी वो मैं डायरेक्टली आपको वर्किंग प्रिंसिपल, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग प्रोसीजर ऑफ इंसिनरेटर बताऊंगा। सो आज की जो हमारी लेक्चर्स है रूल्स रेगुलेशंस एज पर मार्पोल एनेक्स रिगार्डिंग द इंसिनरेटर एंड पार्ट्स, एंड लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हमारी एमएमडी ओरल्स में फ्रीक्वेंटली एंड ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस होती है। So without wasting much time, let's discuss our lectures. So basically, what is incinerator? Incinerator is an equipment which is capable of burning sludge waste, solid waste, oily water mixtures, general waste and sewage vapors as per MARPOL requirements, and that equipment which is present on board ships called incinerator. We are going to discuss about rules and regulations as per shipboard incineration, that is regulation 16. So our first rule is all foreign going vessels, ships on or after 1 January 2000 shall meet the requirement contained in appendix 4 to this annex, shall be installed incinerator and shall be approved by the administrations. Means all foreign going vessels, ships on or after 1 January 2000 shall be installed incinerator on board ships. Now, second regulation is shipboard incineration of the flowing substances shall be prohibited. Means the flowing substances, whatever I am going to tell you now, shall be, means we can't burn that substances. So first substances see Annex 1, 2 and 3 cargo residues of the present convention and related contaminated packing materials. Means simple, Annex 1, 2 and 3 cargos residue cannot be burned inside the incinerator as per regulation 16. Shipboard incineration is prohibited. Now second thing is polychlorinated biphenyl PCB shall be prohibited. So PCB cannot be burned inside the incinerator. Why we can't burn PCB inside the incinerator? Because to burn the PCB it requires very high temperature, but incinerator achieve only up to 900 to 1100 degrees Celsius. That's not enough to burn PCB successfully. That's why PCB is prohibited. Okay. Now third one is garbage as defined in Annex 5 of the present convention contaminated more than traces of heavy materials. It also cannot be burned inside the incinerator. And last one is refined petroleum products containing halogens or naphtha compound. Means whatever the halogens compounds which cannot burn in incinerator. So these are the substances we can't burn inside the incinerator. Now next one is shipboard incineration of polyvinyl chloride shall be prohibited except in shipboard incineration for which IMO type approval certificates have been issued. Means what? Polyvinyl chloride refers to PVC, that is pipes. Okay, that is plastics and pipes. So plastic products means what this sentence tells you about that. If your incinerator is being provided with type approval of burning the PVC material, then only you can burn the PVC materials. And what type of PVC materials? You can burn only single use plastics. Okay, and when you burn single use plastic, if your incinerator is being provided with type approval of burning the PVC material, if your incinerator is not being provided with type approval of burning the PVC material, you can't burn PVC. Okay, so this is the important regulations. And one more regulation is that whatever in shipboard incineration
of sewage sludge and sludge oil generated during the normal operations of a ships, okay, may also takes place in the main or auxiliary power plant or boilers, but in those cases so not takes place inside port servers and estuaries. Means what? Means whatever you are going to burn such as sewage sludge and sludge oil generated during the normal operations of ships shall not be burned inside the ports, harbors and estuaries. What does it estuaries means? Estuaries means water bodies which is surrounded three sides of land, okay, so that is estuary. So we can't burn in this situation, but it inside the ports, harbors and estuaries, okay. Now, and the last regulation is monitoring of combustion flue gas outlet temperature shall be required at all time, and waste shall not be fed into a continuous feed shipboard incinerator when the temperature is below the minimum allowed temperature of 850 degrees centigrade. For batch loaded shipboard incinerator, the unit shall be designed so that temperature in the combustion chamber should reach 600 degrees centigrade within 5 minutes after startup. So this is important point, okay, this is very important point. And why 5 minutes here? Means last sentence is my what? The last sentence is the unit should be designed to that the temperature in the combustion chamber shall reach 600 degrees centigrade within 5 minutes after startup. So why 5 minutes? Because to ensure that the incinerator combustion takes place in such a way that there is a very less scope of improper combustion. So that's why there is a time period within 5 minutes after startup, okay. Now this is all about the rules and regulations regarding the incinerator. So अभी हम लोगों ने बात किया rules and regulations regarding the incinerator as per annex regulations 15, okay. So अब हम बात करेंगे incinerator की important parts क्या होती है, क्या क्या important parts होते हैं, okay. हम इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे और मैं बस ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा important parts, एंड जो हमारी लास्ट जो मैं क्वेश्चंस लूंगा वो हमारी एमएमडी ओरल से पूछी गई क्वेश्चंस हैं, ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होती है. सो प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें. नाउ अब हम बात करते हैं इंसिनरेटर की इंपॉर्टेंट पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट जो हमारी होती है वो हमारी होती है प्राइमरी चैम्बर. सो व्हाट इज प्राइमरी चैम्बर? हमारी फर्स्ट पार्ट जो होती है वो हमारी होती है प्राइमरी चैम्बर. प्राइमरी चैम्बर में हमारी क्या होती है, जो भी हमारी स्लज सॉलिड वेस्ट जो हमारी होती है, सीवेज वेपर जो होती है, जनरल वेस्ट जो हमारी होती है, वो हम प्राइमरी चैम्बर में हम उसे बर्न करते हैं. ओके, क्लियर? नाउ सेकेंड वन इज सेकेंडरी चैम्बर. सेकेंडरी चैम्बर और कंबशन चैम्बर. ऑब्वियसली इट्स कंबशन प्रोसेस, सो इट इज कंबशन चैम्बर. This also primary combustion chamber and secondary combustion chamber. अब हमारी सेकेंडरी कंबशन चैम्बर्स क्या होती है, जो भी हमारी प्राइमरी कंबशन चैम्बर में जो भी हमारी स्लज जो हमारी जनरेट होती है शिप्स में, नॉर्मल ऑपरेशन शिप्स ऑपरेशंस में जो हमारी स्लज जनरेट होती है हमारी कहाँ, प्राइमरी चैम्बर में हम उसे बर्न आउट करते हैं. जो हमारी सीवेज वेपर जनरेट होती है वो हमारी प्राइमरी चैम्बर में उसे बर्न आउट करते हैं. जो भी हमारी सॉलिड वेस्ट होती है वो हमारी प्राइमरी चैम्बर में बर्न आउट करते हैं. जो भी हमारी जनरल वेस्ट होती है वो हमें प्राइमरी चैम्बर में उसे बर्न आउट करते हैं. तो उसके बाद जो हमारी क्या होती है, अनबर्न्ड कंबशंस होती है, अनबर्न्ड एग्जॉस्ट जो होती है उसे हम बर्न सेकेंडरी कंबशन चैम्बर्स में करते हैं. जो प्रोसेस जो होती है कैसे बर्न होती है, होल प्रोसेस में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा. सारी चीजों को मैं आपको ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ अब हम बात करेंगे प्राइमरी चैम्बर. अब हमारी प्राइमरी चैम्बर्स के अंदर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है, लाइक फर्स्ट वन इज पायलट बर्नर and it is also called diesel oil burner. Got it? Now second one is main burner and it is also called as primary sludge burner. Primary sludge burner. Got it? Now थर्ड वन इज ब्लोअर. ये हमारी प्राइमरी चैम्बर में ये तीन पार्ट्स हमारी प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ अब हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड जो हमारी पार्ट होती है वो हमारी होती है स्लूइस डोर.
स्लूइस डोर हम वहां पर क्या करते हैं, जो भी हमारी सॉलिड वेस्ट जो होती है, स्लूइस डोर के थ्रू हम उसे सॉलिड वेस्ट को हम उसे प्राइमरी चेंबर में फीड करते हैं। एंड इफ स्लूइस डोर इज ओपन तो हमारी जो भी हमारी पायलट या मेन बर्नर हमारी ऑपरेटिंग कंडीशंस में नहीं होनी चाहिए। ओके, सो हमारी स्लूइस डोर होती है। ये सारी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल में आपको बताऊंगा। नाउ फोर्थ वन इज हमारी क्या होती है, एस बॉक्स। जो भी हमारी एस प्रोड्यूस होती है हमारी एस बॉक्स होती है। फिफ्थ वन इज थर्मोकपल। सिक्स्थ वन इज फ्लेम आई। सेवंथ वन इज रिफ्रैक्टरी। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एंड एट वन इज सीवेज नॉन रिटर्न वाल्व। समटाइम्स कुछ शिप्स में हमारी फोर्थ वन इज जो हमारी प्राइमरी चेंबर में होती है वो हमारी सीवेज बर्नर भी होती है। जो सीवेज से जो हमारी वेपर प्रोड्यूस होती है, जो हमारी टॉक्सिक वेपर प्रोड्यूस होती है लाइक H2S, उसे हम यहां बर्न करते हैं, मींस इंसिनरेटर में। सो दैट्स व्हाई सीवेज नॉन रिटर्न वाल्व हमारी प्रोवाइड होती है, ताकि वो बैक फ्लो ना हो, एक्सप्लोजन ना हो, इसलिए हमारी सीवेज नॉन रिटर्न वाल्व प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी टोटल हमारी पार्ट्स है, जो हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है। नाउ हम लोगों ने प्राइमरी चेंबर की डेफिनेशन देखा, हम लोगों ने सेकेंडरी चेंबर की डेफिनेशन देखा, स्लूइस डोर के बारे में मैंने आपको बताया, एस बॉक्स इज नोन टू यू, थर्मोकपल। सो व्हाट इज थर्मोकपल? थर्मोकपल इज प्रोवाइडेड इन एग्जॉस्ट ऑफ फर्नेस। ये हमारी जो प्रोवाइड होती है एग्जॉस्ट ऑफ फर्नेस में प्रोवाइड होती है टू डिटेक्ट द टेम्परेचर। मींस क्या हो सकती है, हमारी ऑयल एक्यूमुलेट हो सकती है, इससे हमारी टेम्परेचर बूस्ट अप हो सकती है। मे बी हमारी ब्लोअर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो हमारी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकती है। सो टू प्रिवेंट मींस टेम्परेचर इंक्रीज होगी, हमारी एक्सप्लोसिव हो सकती है। टू डिटेक्ट हाई टेम्परेचर हम थर्मोकपल यूज करते हैं। गॉट इट? नाउ व्हाट इज फ्लेम आई? फ्लेम आई हमारी क्या होती है? इफ फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड इनसाइड द कंबशन चेंबर बट बर्नर इज स्टिल ओपन। ओके, सो हमारी क्या होगी, अगर बर्नर स्टिल ओपन होगी तो हमारी क्या होगी, ऑयल एक्यूमुलेशंस होगी, हमारी हीट डेवलप होगी, हमारी एक्सप्लोसिव होगी। सो टू प्रिवेंट एक्सप्लोसिव, ओके, तो हमारी क्या होती है, फ्लेम आई होती है। फ्लेम आई क्या करती है, हमारी ये किसे सिग्नल प्रोवाइड करती है, ये हमारी बर्नर को सिग्नल प्रोवाइड करती है व्हेन, जब हमारी फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड होती है। एज सून एज फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड, फ्लेम आई प्रोवाइड सिग्नल टू बर्नर एंड हेंस बर्नर क्लोजेस। ओके, मींस यहाँ पर बर्नर हमारी ओपन नहीं रहेगी, हमारी बर्नर भी क्लोज हो जाएगी। ओके, नाउ रिफ्रैक्टरी इज नोन टू यू एंड सीवेज रिटर्न वाल्व मैंने आपको बताया। नाउ अब हम बात करेंगे जो भी हमारी प्राइमरी कंबशंस में होती है, जो भी प्राइमरी कंबशन चेंबर्स में होती है, हमारी पायलट बर्नर होती है, मेन बर्नर होती है, ब्लोअर्स होती है, एंड समटाइम्स सीवेज बर्नर भी प्रेजेंट होती है। तब हम बात करेंगे जो हमारी पायलट बर्नर जो होती है वो क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो पायलट बर्नर हमारी क्यों होती है, बिकॉज जो भी सपोज ये हमारी इंसिनरेटर है। ओके, मैं पूरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर्स में दूंगा। सपोज ये हमारी इंसिनरेटर है। ओके, अब इंसिनरेटर है और यहां पर हमारी क्या है, पायलट बर्नर है। ओके, ये हमारी पायलट बर्नर है, ये हमारी पायलट बर्नर है। ओके, अब हमारी क्या है, यहां पर हमारी क्या है, सपोज ये हमारी वाल्व है और यहां पर हमारी क्या है, स्लज वेस्ट है, ये हमारी स्लज वेस्ट। तो जो हमारी स्लज वेस्ट होती है इंसिनरेटर में, अगर उसे बर्न करना होता है तो हमारी टेम्परेचर इंसिनरेटर कंबशन, जो प्राइमरी कंबशन चैम्बर की टेम्परेचर जो होनी चाहिए मोर देन 600 एंड समटाइम्स अप टू 800 to 900 डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो होती है स्लज वेस्ट जो होती है वो हमारी बर्न होती है। ओके, तो उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम पायलट बर्नर यूज करते हैं, जिससे हमारी सॉलिड वेस्ट जो होती है और जो हमारी ऑयल रैक्स जो होती है वो हम बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ पायलट बर्नर। और इससे हमारी क्या होती है, जो प्राइमरी कंबशन चेंबर की टेम्परेचर जो होती है वो हमारी इंक्रीज होती है। अब जब हमारी प्राइमरी चेंबर की टेम्परेचर जब हमारी 800 to 900 डिग्री सेल्सियस अचीव होगी, तब हम मेन बर्नर यूज करेंगे, दैट इज प्राइमरी स्लज बर्नर। ओके, तो और हमारी स्लज वेस्ट हमारी बर्न होगी। तो इसलिए हमारी पायलट बर्नर हमारी
आती है। तो पायलट बर्नर हमारी कैसे काम करती है, कैसे यहाँ पर हम फ्लेम जनरेट होती है, मैं इस पर बात करूंगा। तो आप देख सकते हो ये हमारी पायलट बर्नर है और ये हमारी जो होती है डीजल ऑयल ऑपरेटेड होती है, मींस यहाँ डीजल फ्यूल एज ए डीजल ऑयल हमारी यहाँ यूज होती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज डीजल ऑयल बर्नर। नाउ अब ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इलेक्ट्रोड होती है, आप देख सकते हो ये हमारी इलेक्ट्रोड है। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रोड है। अब यहां पर हमारी क्या होती है, कंबसन, फॉर कंबसन फ्यूल इज देयर, इलेक्ट्रोड इज देयर, नेक्स्ट वन इज एयर। हमारी यहां पर कंबसन एयर प्रेजेंट होती है और प्राइमरी एयर प्रेजेंट होती है फॉर कंबसन। हमारे यहां पर डीजल ऑयल एज ए फ्यूल है, हमारी यहां पर एयर अवेलेबल है फॉर कंबसन। और जो हमारी यहां पर जो मैंने इलेक्ट्रोड आपको शो किया है, ये हमारी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है हमारी 1000 वोल्ट होती है, 1000 वोल्ट होती है, जिससे हमारी स्पार्क प्रोड्यूस होगी, स्पार्क प्रोड्यूस होगी तो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, एयर अवेलेबल है, फ्यूल ऑयल अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी। व्हाट इट, तो यहाँ पर हमारा जो भी हमारी सॉलिड वेस्ट है हमारी ऑयल रैक्स हमारी बर्न करेंगे और टेम्परेचर हमारी अचीव होगी अप टू 600, 700, 800, जो हमारी स्लज वेस्ट होगी मेन बर्नर के थ्रू और प्राइमरी स्लज बर्नर के थ्रू हमारी स्लज वेस्ट जो होगी बर्न आउट होगी। तो ये हमारी बर्नर होती है और ये हमारी ऐसी पायलट बर्नर ऐसे हमारी काम करती है। नेक्स्ट वन इज, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आज एक एमएमडी ओरल्स की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हमारे इंसिनरेटर से रिलेटेड है और वो हमारी फ्रीक्वेंटली ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस होती है। एंड आवर क्वेश्चन इज, सपोज इफ योर पायलट बर्नर ट्रांसफार्मर इज बर्न आउट एंड यू डोंट हैव एनी स्पेयर ऑन बोर्ड शिप्स, so how can you fire the boiler or how you will fire the boiler, but it relate to incinerator. Why? Because जो हमारी बॉयलर में जो हमारी पायलट बर्नर जो होती है, शिप्स में जो हमारी जो बॉयलर की जो पायलट बर्नर होती है वो हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है, वो हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। जो हमारी पायलट बर्नर की जो ट्रांसफार्मर जो हमारी होती है वो हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। एंड सेम जो हमारी इंसिनरेटर की बर्नर होती है वो भी हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। गॉट इट? तो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी स्पेयर है हमारी स्पेयर है नहीं और जो भी पायलट बर्नर जो बॉयलर की है वो बर्न आउट हो चुकी है, तो हम डायरेक्टली इंसिनरेटर की स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर देंगे हमारी बॉयलर की बर्नर। ओके, तो ये हमारी एमएमडी ओरल्स में पूछी गई क्वेश्चंस हैं। तो आई होप ये आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है इस लेक्चर में कुछ भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होगी उस पर मैं बताऊंगा आपको कैसे हमारी इंसिनरेटर वर्क करती है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, इंसिनरेटर्स की सारी वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा। एंड आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।